Assalamualaikum student. Now we have to do practice now 3. Okay, and again it is related to congruent figures. First of all, we have to do part A. Look at these two figures at part A. Look here, this one is this is a triangle. Its name is PQR ABC. Values are given. Obviously it is an angle, so 3 angles are given, 3 sides are given. Look here at the angle. This one is the angle. At angle A, which degree is given? 60 degree. Angle C is 40 degree and angle B is 80 degree. As you all know that sum of angle triangle is 180. So when we have to count, it is equal to 180. Okay. So sides are given. Always remember, side means movement from one point to the another point. So from when we have to move from A to B, which number is given? 4 centimeters. So measurement is 4 centimeter. AB measurement is 4 centimeter. Next, AC measurement is 6.1 and BC measurement is 5.4. Clear? Similarly, another triangle is given. Its name is PQR. Okay, and angles are given. Look here. Angles are almost same. Look here. At angle R, 40 degree. Angle Q, it is equal to 60 and angle P is equal to 80 degree. And measurements are also given. PR is equal to 10.8. Next one is, okay, the other one which is given. Just I have to see that value from the book. Okay, it is 88 centimeter. This one is 8 centimeter and this QR is equal to 12.2 centimeter. And what we have to do here, they are saying, are the following pair of triangle congruent? Okay, please tell me, what is the condition for congruent? Very good. The first is all the angles are equal. And what is the second one? All the sides are also equal. So these are the conditions for congruent figure. If so, if both of these two triangles are congruent, then what shall we have to do? You have to explain your answer by writing the statement of congruence. I think so. Now all of you know what is the statement of congruence. Yes, it is that you have to write that all the angles are equal and then you have to write all the, yes, which one is equal? All the sides are also equal. So we have to, I have to write it here. मैं इधर ही कर लेती हूँ. Okay, first we have to, okay, one thing in the previous practice now I will tell you that you have to name them. Now it becomes easier for you to find the missing value. But here how you have to name, because you have to prove that these two triangle are congruent. बेटा मैं आपको उर्दू में भी बता देती हूँ कि आपने प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट है. ऑब्वियसली अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल गिवन हो तब तो आप उसको नेम दे सकते हैं 1 2 3. इसमें तो हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है. तो गौर से सुने, हमने फाइंड आउट कैसे करना है बेटा. आपने ये देखना है कौन से दो एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल में. फर्स्ट वी कम्स टू ए. अच्छा ओके, ए पे कितने डिग्री है? 60 डिग्री. ओके, हियर वी आई हैव टू राइट ए. और ये कितने डिग्री है? 60 डिग्री. उस जगह पे बेटा देखें गौर से, उधर जो 60 डिग्री है वो उसकी वो किस पे है? दिस वन क्यू पे. वो किस पे है? क्यू पे. ओके, 60 डिग्री है क्यू पे. वेट, जस्ट गिव मी, आई वांट टू चेंज द कलर. जस्ट वेट, क्यू का मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ना, ताकि फिर हमारे लिए इजी हो जाए. Okay, I can't change the color because it is on the same sequence. Okay, look here, A and Q both are corresponding, because if the value of A is equal to 60, Q is equal to also 60. Okay, A के बाद हम क्या लेंगे? B लेंगे. Okay, so what is the value for B? 80. अब उधर देखिए 80 डिग्री किस पे है? P पे. इधर हम क्या ले लेंगे? P. प्लीज ये बात क्लियर हो रही है? ए पे 60 है तो क्यू पे भी 60 है, बी पे 80 है तो पी पे भी 80 है. नेक्स्ट वी कम टू द सी. और सी पे कितने डिग्री है बेटा? 40 डिग्री है. तो इधर आर, यस आर ही है. आर पे भी कितने डिग्री है? 40 डिग्री है. ओके, अब ये देखिए बेटा, एक चीज तो हमने प्रूफ कर ली. क्या चीज हमने प्रूफ की? कि जो एंगल्स हैं वो तो इक्वल है. अब हमने ये प्रूफ करनी है कि साइड्स इक्वल हैं या नहीं है. ओके,
एंगल इक्वल है, ये हमने प्रूफ किया है। अब फर्दर भी मैं कर लेते हैं, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूं। एंगल कैसे इक्वल है ये मैं भी आपको बताती हूँ, वेट। सबसे पहले हम फर्स्ट एंगल लिखते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल था, क्यू, ओह सॉरी, इज इक्वल टू एंगल क्यू, और ये जो बोथ है ये किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। एंगल का साइन भी लगा देते तो आपको क्लियर हो जाए। सो एंगल ए एंड एंगल क्यू both are equal to 60 degree. Okay, next we move towards the next क्या था बेटा आपके पास, एंगल बी था, तो आपने क्या किया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, और ये भी जो है किसके इक्वल है बेटा, 80 डिग्री। नाउ आई थिंक इट इज मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट वी कम्स टू एंगल, ओके, एंगल सी and it is equal to angle R and both of these two angles are equal to 40 degree. Clear? अब ये देखें, from here we have to find out that angles are equal. Now we comes to the side. First I have to take the side AB. Okay, अब एंगल इक्वल है, अब हम इसको नेम भी दे सकते हैं। ओके, अब मैं इसको नेम देती हूँ, ABC को मैं क्या नाम नेम दूंगी, 1 2 3, और मैं QPR को भी नेम दूंगी। उसके लिए फर्स्ट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, QPR को भी मैं क्या नेम दूंगी, 1 2 सॉरी 2 एंड 3। ओके, अब देखिए मैंने नेम दे दिया ना, मेरे लिए बहुत इजी हो गया साइड्स फाइंड आउट करना। अब फर्स्ट मैं क्या लेना है, AB। अब ये देखिए AB की मेजरमेंट क्या है, 4 सेंटीमीटर। लुक हियर, आई हैव टू राइट इट हियर, AB मैंने लिया है और इसकी मेजरमेंट क्या है, 4। ओके, और अब मुझे बताएं जो नेक्स्ट है AB, उसका नंबर क्या है, 1 एंड 2। इधर 1 एंड 2 पे क्या है, QP, तो आपने यहाँ क्या लिखना है, इज इक्वल टू QP। नाउ लुक हियर, लुक एट QP, दिस वन इज QP। QP की वैल्यू क्या गिवन है, 8, वो तो उसके डबल है, इसके इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे बेटा, एक मिनट सॉरी, अब हम यहाँ ये लाइन लगाएंगे, तो इसका मतलब है AB इज नॉट इक्वल टू QP, क्योंकि AB जो है वो 4 के इक्वल है, और जो QP है वो किसकी इक्वल थी बेटा, QP इक्वल थी 8 के, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि QP किसके इक्वल है, 8 के। ओके, सो बोथ ऑफ दीज टू आर नॉट इक्वल, AB और QP आपस में इक्वल नहीं है। ओके, इसको बल्कि मैं एक और तरीके से लिखती हूँ, वेट, इसको हम दोबारा लिखते हैं बल्कि और इजी हो जाएगा आपके लिए। सिंपल आप ये लिखें, फर्स्ट आई हैव टू चेंज द कलर, रेडी ले लेते हैं ताकि क्लियर हो। ओके, AB इज इक्वल टू, AB का नंबर क्या है, 1 एंड 2। लुक हियर, 1 एंड 2 है ना, इधर 1 एंड 2 पे क्या है, QP, और साइड के लिए हमेशा 2 पॉइंट्स होते हैं, यहाँ हमने मूव किया A to B और यहाँ क्या किया है, Q to P। अब देखिए AB है 4 और QP है 8, क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल। ओके, अब नेक्स्ट वाली साइड पे आ जाते हैं, BC हम ले लेते हैं इधर, B एंड नेक्स्ट C। अब ओके, अब ये भी हमने प्रूव करना है कि ये BC का नंबर क्या है, 2 3, इधर 2 3 पे क्या है, PR। ओके, PR। अब BC आपको नजर आ रहा है बेटा, BC तो है 5.4, और जो PR है दिस वन, ओके, दिस इज P एंड दिस इज R, ये है 10.8, ये भी इक्वल नहीं है। हम थर्ड वाले पे आ जाते हैं, थर्ड है AC, और यहाँ है हमारे पास QR। ओके, दिस इज QR जो है दिस वन, इट इज इक्वल टू 12.2, QR 12.2 है, और जो AC है वो 6.1 है। ये इन अदर वर्ड ये सारी फिगर उससे डबल है। ओके, ये सारे इक्वल नहीं है, तो अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या साइन लगाएंगे, मैं कलर चेंज करती हूँ ना ताकि आपको इजी हो जाए, तो मैं साइन ये वाला लगाऊं, कट कर दूंगी। ओके, इसका मतलब है इट इज नॉट इक्वल टू। ओके, फर्स्ट हमने क्या किया, हमने बेटा पहले हमने एंगल फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद बेटा हमने साइड्स को किया। एंगल तो सारे इक्वल थे लेकिन साइड्स इक्वल नहीं थी। अब आपने क्या लिखनी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस लिखनी है। ओके,
नाउ यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अब आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस जो लिखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ये देखिए, पहले अब ये, अच्छा ये देखिए, ये इसका सिंबल 3 डैश भी हो सकते हैं और 2 लाइन के ऊपर एक कर्व वाली भी हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं यूज करेंगे जो आपकी बुक में यूज है। ओके, तो हमने ये लगा दिया। इसका मतलब क्या है, एबीसी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू क्यूपीआर। क्यों? अब देखिए आपने ये भी लिखना स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, व्हाई, क्यों नहीं है। अब मैं इसको नीचे लिख के आपको बताती हूँ। ओके, यू हैव टू राइट ए बी सी, आगे आपने लिखना है इज नॉट, या यू कैन यूज ऑल्सो द सिंपल congruent to QPR because angles are equal but sides are not equal. Now is it clear? So this is called the statement of congruence. बेटा ये clear हो गया आपको? Very good. Now we comes to the second. So can I erase this? Okay. First I have to erase all that. Now we comes to the second. सेम इसका बेटा वही प्रोसीजर है जो हमने उस वाले को किया था। लुक हियर, हमने सबसे पहले बेटा एंगल्स के अकॉर्डिंग हमने इसको नेम देने। अब ये देखिए एंगल D80 है और इधर एंगल T80 है, लेकिन इधर U है वो 40 डिग्री है और E कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। वेरी इजी, वी नो what are the sum of the angle in a triangle, it is equal to 180. So first you have to add this 80 plus 60, mental math. Okay, hurry up. Yes, 80 plus 60 it is equal to 140. अगर ये 140 के इक्वल है तो इसका मतलब थर्ड वन क्या होगा, 40 के इक्वल होगा। आई हैव टू राइट इट फॉर यू। तो थर्ड वन जो है यहाँ लिखते हैं वो किसके इक्वल है, वो 40 डिग्री के इक्वल है। ओके, इसका मतलब है जो एंगल एफ है आपके पास वो 40 डिग्री के इक्वल, इसको मैं अंदर कर देती हूँ, इसके इक्वल है 40 डिग्री के। ओके, और दूसरे वाले को मैं अरेज कर देती हूँ। ओहो, चलिए दोबारा लिख लेते हैं। This one is 40 degree. This is the value for F. ये 40 डिग्री। अब देखो हमारे सारा कंप्लीट हो गया, 60, 80 एंड 40। इसको भी चेक कर लेते हैं, 80 और 40 क्या हो जाएगा, 120। तो 180 में से जब 120 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 60। तो इधर हम क्या लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं 60। एस क्या है, 60 की इक्वल है। ओके, अब हमने सारे एंगल कंप्लीट कर लिए, हमने मेंटल मैथ से किए, लेकिन अभी हम रिटर्न फॉर्म में करेंगे, मे बी वी कमिट सम मिस्टेक। सो फर्स्ट I have to write it here. Look here. I have to write it here. First, you have to write sum of angles in triangle. You can even use the symbol for save your time. 180 degree. Getting my point? Okay. Up now we comes to the first one. अब यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, sum of angle in triangle is equal to 180. फर्स्ट एंगल क्या गिवन है बेटा, जल्दी से बताएं, 80, नेक्स्ट वन इज प्लस 60, ओके, और नेक्स्ट वन इज मिसिंग, जो मिसिंग है उसका क्या नाम है, एफ, ओके, एंड ऑल दिस इज इक्वल टू 180। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 80 प्लस 60, अब अच्छी तरह काउंट कर ले, 140 है, यस, प्लस एफ एंड दिस इज इक्वल टू 180। अब हम मूव करेंगे उसको, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जैसे आपका जो बड़ा भाई है उसका फ्रेंड भी बड़ा होगा और आपका जो फ्रेंड होगा वो आपके एज ग्रुप का होगा। तो मुझे बताएं कि जो प्लस है, एडिशन है, उसके फ्रेंड का नाम क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो ये 140 ऐड हो रहा है ना इधर, ओके, आई हैव टू पुट द साइन, ऐड हो रहा है, तो एडिशन वाला का फ्रेंड क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के पास ही जाएगा। ओके, या इन अदर वर्ड इन इक्वेशन व्हेन वी हैव टू मूव प्लस toward the next side, its value will be changed into, yes, its value will be changed into minus. So here we have f is equal to 180 minus 140. Okay, और next ये final answer आ गया, f is equal to 40। इसके अलावा ये हमने जो किया था बिल्कुल एक्यूरेट किया।
ओके, नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट। ये तो हमने फर्स्ट वाला किया, अब हम इस वाले को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट आई हैव टू चेंज द कलर। ओके, अब इसमें भी सेम वही है, फर्स्ट सेंटेंस प्लीज ये याद रखें, ये आपने जरूर लिखना है, सम ऑफ एंगल्स in triangle, and you can even use the symbol instead of writing the whole sentence. You can use the symbol, okay, is equal to 180. Clear हो गया? Next step पे आ जाए। 2 are given, 80 and 40 are given, so I have to write it here, 80 plus 40. Which one is missing? S is missing. Put the sign and write S is equal to 180. Now I have to add 80 plus 40, it is equal to 120. जल्दी से कर लेते हैं, S is equal to 180. Clear हो गया? Now we move towards the next. Oh, I missed the sign. इतनी जल्दी नहीं करने के साइन ही मिस कर दें, okay? So S is equal to 180. ये प्लस है बेटा, और मूव होगा जब 120 मूव होगा तो क्या साइन हो जाएगा? माइनस 120. ओके, सो इट इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 60, बिकॉज 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60. जिसका मतलब है जो हमने दोनों ये फाइंड आउट किए थे बिल्कुल एक्यूरेट किए थे. ओके, अब हम फाइंड आउट करना है कि इज दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट कॉन्ग्रुएंट. तो फर्स्ट हम इसके, अब हम नेम पहले देंगे, कहीं से भी शुरू कर रही है, आपकी अपनी चॉइस है, चाहे डी से करें, चाहे ई से करें, चाहे एफ से करें. कहाँ से करना है आपने? चले डी से कर लेते हैं. ओके, तो हम वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डी. ओके, अब डी की वैल्यू प्लीज बेटा याद है कि आपने ये ठीक है, आप डी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ अपनी चॉइस नहीं है, यहाँ आप इंडिपेंडेंट नहीं है. ओके, फर्स्ट पे आप इंडिपेंडेंट है, आप जो मर्जी लें, चाहे डी लें, चाहे ई लें, चाहे एफ लें. लेकिन जब आपने सेकंड लेना है तो आपने कैसे लेना है? डी का अगर एंगल 80 है तो यहाँ आपने 80 ही लेना है, यहाँ 40 या 60 नहीं ले सकते. तो डी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ आप क्या लेंगे? टी लेंगे. ओके, तो यहाँ टी लेंगे आप. ओके, क्योंकि डी का एंगल भी 80 है और टी का एंगल भी 80 है. नेक्स्ट जो वैल्यू बेटा आप लेंगे वो क्या लेंगे? वो आप एस ले लें इधर, सॉरी पहले हम इधर लेंगे, इधर हम ले लेते हैं ई. इधर हमने ई लिया है और उधर हमने एस लिया है. क्यों एस लिया? क्योंकि एस भी 60 है और ई भी 60 है. ये जरूर ध्यान रखना है, वैल्यू सेम. अभी एफ 40 है, ठीक है, उधर 40 पे क्या है? उधर यू है. अब आपने ये जो दो लिख लिया ट्राइंगल, अब आपने ये प्रूव करना है कि आइदर दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट कॉन्ग्रुएंट. तो हम पहले हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, पहले हमने एंगल क्या ले लिया? डी ले लिया, इज इक्वल टू एंगल टी ले लिया. ये तो खैर हमने प्रूफ ऑलरेडी किया हो कि ये 80 ही है, तभी तो हमने इसको नेम दिया. नेक्स्ट हम आ जाए एंगल, उसके बाद एंगल ई इज इक्वल टू एंगल यस एस इज इक्वल टू, ये कितना था? एंगल ई कितना था और एस कितना है? 60. नेक्स्ट पे आ जाए, अब क्या? एंगल, ओके, एंगल एफ, और ये इक्वल है किसके? एंगल यू के, और इसकी वैल्यू क्या है? 40. क्लियर हो गया? अब एंगल तो सारे इक्वल हो गए, लेकिन सारे खाली एंगल इक्वल होने से तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. अब साइड्स को फाइंड आउट करना है. अब ये देखिए, फर्स्ट वी हैव टू लुक एट द साइड. अब ये यही देख लें, डी एफ की क्या वैल्यू है? 5.39. ओके, अब मैं साइड्स लेती हूँ, डी एफ, अब वो इज इक्वल टू डी एफ का पहले हम नंबर लेते हैं. अब मैंने इसको, सॉरी मैंने इसका नंबर नहीं लगाया, मैं अभी लगा देती हूँ. ओके, ये डी एफ का पहले नंबर लगा लेते हैं. इसको थोड़ा नीचे करते हैं. हाँ, अब ऊपर ये देखें, डी का नंबर मैं लगाती हूँ 1, ई का लगा रही हूँ 2 और एफ का लगा रही हूँ 3. इधर भी इसको भी नंबर दे देते हैं. इसका नंबर क्या है? इसको भी दे देते हैं 1, 2 एंड 3. ओके, अब बेटा आपने करना है डी एफ. देखो डी एफ का नंबर क्या है? 1 एंड 3. इधर देखिए, डी पे क्या है? 1, एफ पे क्या है? 3. 1 एंड 3. इधर 1 एंड 3 पे क्या है? टी एंड यू. ओके, सो हियर यू हैव टू राइट टी एंड यू. एंड नाउ लुक एट द वैल्यू. ये देखो ये विजिबल है, टी एंड यू. टी एंड यू की वैल्यू क्या थी? 5.39, और डी एफ की भी क्या है? 5.39.
तो ये तो दोनों इक्वल है, तो वी हैव टू राइट इट हियर। ओके, डीएफ, फिर देखें डीएफ का नंबर क्या था 1 and 3, उधर 1 and 3 पे क्या है टी यू, और दोनों की वैल्यू क्या है 5.39। क्लियर बेटा? नाउ वी कम्स टू द सेकंड। सेकंड हम क्या ले लेते हैं, डीई ले लेते हैं। यस, वी कैन टेक डीई, और ये मैं आपकी बुक से देख लेता हूँ डीई की वैल्यू क्या है। ओके, डीई की वैल्यू है 4, और पहले हम इसको देख लेते हैं इसका नंबर क्या है। ओके, डीई का नंबर है 1 and 2, इधर 1 and 2 पे क्या है टीएस, टीएस, और वैसे इसकी वैल्यू 4 थी। अभी हम ये देख लेते हैं इधर क्या वैल्यू है टीएस, टीएस तो हमें नजर भी आ रहा है 4 ही है, इस तरह ये इक्वल है। चलिए, अभी तक दो साइड्स तो इक्वल हो गए, लेकिन जहाँ लिखे दो साइड इक्वल होने से कॉन्फ्रेंट नहीं होगा जब तक तीनों साइड इक्वल ना हो। ओके, अब एक ही साइड रहेगी, वो क्या रहेगी, वो एफ ई रहेगी। ओके, एफ ई। अब ये देखिए पहले मैंने एफ लिया, तो इधर भी मैं पहले क्या लूंगी यू, और फिर मैं क्या लूंगी टी। ओके, अब मैंने यू टी लिया। ओके, यू टी की तो वैल्यू मुझे नजर भी आ रही है, दिस इज 6.13। अब मैं देखती हूँ बुक से एफ ई की वैल्यू क्या है, तो एफ ई की वैल्यू, ओ वेरी गुड, एफ ई की वैल्यू भी है 6.13। सो दिस मीन लुक हियर, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब मैं वो लिख लेती हूँ, क्या लिखनी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस। ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं सारी आपने सॉल्व करने हैं। ओके, अब नाउ आई हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस, दैट इज आई हैव टू राइट इट। पहले यहाँ मैं साइन भी लगा देती हूँ, एक मिनट ठहरे, इसका पहले कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करने के बाद मैं ये साइन लगाती हूँ। ओके, 3 डैश लगानी है, 1 according to your book, we follow our book. Okay, this is congruent, DF is congruent to TSU. Why? अब ये मैं स्टेटमेंट लिख लेती हूँ अभी आपके सामने कि why it is congruent. So I have to write DEF is congruent to, what is the name of other? Yes, its name is TSU. TSU, because always write the reason. So reason is, yes, जल्दी से बताएं, all angles are equal and all sides. तो इसका मतलब अच्छा सा लिख लेते हैं, हम ये लिखते हैं all angles and all sides are equal. ठीक है ना, आप सही होगा ना सेंटेंस, आर इक्वल। क्लियर हो गया? अब देखो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब जो फर्स्ट वाला था उसमें एंगल्स तो इक्वल थे लेकिन साइड्स इक्वल नहीं थी, तो दैट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। बट हियर एंगल्स आर इक्वल, द साइड्स आर इक्वल। ऑलवेज रिमेंबर, इन कॉन्ग्रुएंट फिगर साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल। क्लियर हो गया? दिस इज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।